Okay, let me start the recording. Okay, so the very first question is, okay, if you have, for example, just one second, if you have y equal to x plus 1 over x, so yeah, then find x square dot dy divided by dx plus y square, सही है, plus y square. Okay, तो अब इसमें x square निकालना is not a problem, x square की जगह x square ही लिख दो. dy by dx निकालना is not a problem either because y dash equal to x का डेरिवेटिव 1 और 1 by x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 1 by something का डेरिवेटिव is minus 1 by something का स्क्वायर, तो minus 1 over x square, तो x square into 1 minus 1 divided by x square, सही है, प्लस y square निकालना है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, तो y square equal to x plus 1 by x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, that is x square a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, so x square plus 1 over x square plus 2 into x into 1 over x, so these two would cancel, you would get x square plus 1 over x square plus 2, यहाँ पे पुट कर लो x square plus 1 over x square plus 2, सही है, so x square अंदर मल्टीप्लाई कर लो, you will get x square माइनस x square जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो 1 बन जाएगा, प्लस x square plus 1 over x square plus 2, so x square sorry नहीं कट होगा, so x square plus x square is 2x square plus 1 over x square plus 2 minus 1 से plus 1 आता है, plus 2 minus 1 से plus 1 आता है, that is how we would solve it, सही है, that is how we would solve it. Okay, please confirm करो, you people can see the screen, right? You people can see the screen, right? मुझे confirm करके बता दो, screen नजर आ रही है सबको? Okay, very good. Okay, let us go forward. The next MCQ is के क्या कहते हैं, x square by 9 plus y square divided by 25 equal to 1, find the vertices, सही है, find the vertices. अब I am pretty sure कि आप लोगों को फॉर्मूला तो याद हो गया ना, x square divided by 3 square plus y square divided by 5 square equal to 1, तो 3,5, सही है, और ये a और b की वैल्यू है, a और ये b की वैल्यू है, सही है, b बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स होगा, और ये इसको लिख लो x minus 0 होल स्क्वायर प्लस y को लिख लो प्लस y minus 0 होल स्क्वायर. वर्टिसेस के फॉर्मूले आप लोगों को बाकी पता है, a, 0, 0, e एंड सो ऑन, वो आप लोगों को पता है. e कहाँ से निकालना है, e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस छोटा भाई बड़ा होता है, बड़ा भाई छोटा होता है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला, बट वहां से कर लेना इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, सही है. सो इस एक क्वेश्चन में यू हैव अ लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन दैट यू कैन फाइंड आउट, सही है. नेक्स्ट इज, ये बाय द वे इलिप्स का क्वेश्चन है व्हिच यू प्रोबब्ली वुड हैव सीन फ्रॉम सरिश्राक लेक्चर्स. द नेक्स्ट वन इज, ये क्या कहते हैं, n log of m to the base of b किसके बराबर होता है, n log of m to the base of b किसके बराबर होता है, तो क्या कहते हैं, यू पीपल नो कि क्या कहते हैं, लॉग पावर को ऊपर ले जाते हैं या ऊपर वाले पावर को नीचे लेके आते हैं, सो इट वुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ m की पावर n टू द बेस ऑफ b, मतलब ये जो बेस हो, सॉरी ये जो इनपुट है इसकी पावर बढ़ा दो, सही है. Adan, if you are not understanding this, तो just leave it as it is. क्योंकि I'm pretty sure आपने फिर conics के lectures नहीं लिए. When you cover them, then you'll understand this. In fact, मैं आपको वैसे भी एक दो दिन में उसके वो revision short form करवा दूंगा. सही है? अच्छा. Then it is, क्या कहते हैं, next question is के x की power 4 plus 6x plus 1. सही है? You have to find the remainder if x plus 1 is a factor. If x plus 1 equal to 0 is a factor, then find the remainder of this. तरीका याद है सबको, जो चीज गिवन है उसको 0 के बराबर पुट कर लो, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, -1 को इसमें पुट कर लो, so 1 minus 6 plus 1, that would give you -6 plus 1 is -5, -6 plus 2 is -4, and you would get -4 as the answer, -4 as the remainder. अगर ये 0 आता, then I would say x plus 1 is a factor, but over here x plus 1 is not a factor, सही है, not a factor. Okay, next is, you are given a square, एक स्क्वायर गिवन है, सही है, स्क्वायर के अंदर ये सर्कल्स गिवन है,
ये सर्कल बाहर नहीं जा रही, तो मैंने डायग्राम ऑब्वियसली डायग्राम का बेड़ा अनफॉर्चुनेटली गर्क कर दिया। इस तरह खूबसूरत एक स्क्वायर है, उसके अंदर दो दो सर्कल्स डाले गए, सही है। दे सेड कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2, ईच सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। देखो बेटा, अगर मुझे स्क्वायर का एरिया मालूम करना है, मुझे ये साइड लेंथ मालूम करनी है। अभी जब साइड लेंथ मालूम हो जाएगी, उसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, उससे मेरे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। सिंस द रेडियस इज 2, तो ये बेटा 2 हो गया इसके सेंटर से। फिर इसके सेंटर से दोबारा इस कॉर्नर तक आ जाओ, मतलब टोटल डायमीटर 4 हो गया। इसका भी टोटल डायमीटर 4 हो जाएगा। अगर ये डायमीटर प्लस ये डायमीटर करोगे, दिस इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो बेटा 4 + 4 8, तो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8, ये भी 8 हो जाएगा। 8 × 8 is 64, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64। The next question is, that is y equal to 1 divided by square root of x plus 1. Find the relative maxima. Find the relative maxima. रिलेटिव मैक्सिमा मालूम करने का क्या तरीका था? डज एनीवन रिमेंबर? डेरिवेटिव लेके जीरो के बराबर पुट कर लो, डेरिवेटिव लेके जीरो के बराबर पुट कर लो, जो वैल्यू आ जाएगी वो ऊपर फिर पुट कर दो एंड चेक इट कि क्या आंसर आ रहा है। या डबल डेरिवेटिव बाद में ले लेते थे, याद है किसी को? एनीवन रिमेंबर्स? पहले सिंपल डेरिवेटिव ले लो, तो y डैश हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या कहते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, सही है। तो y डैश किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर लो, सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर लो, तो y डैश equal to 0, so you will get -1/2 square root of x divided by square root of x plus 1 whole square equal to 0. So -1/2 square root of x equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लो, तो x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू क्या कहते हैं -1/2। अच्छा, डू पीपल नोटिस कि इसकी कोई वैल्यू निकल ही नहीं सकती? डिड एनीवन नोटिस? क्यों नहीं निकल सकती, कौन बताएगा? एनीवन कैन टेल मी? अब देखो यही तो कंफ्यूजन आ जाती है। ये जो सामने मैंने लिखा है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2, वाई एम आई सेइंग कि इससे कोई आंसर नहीं निकल सकता? अगर आप लोग स्क्वायर करके करोगे गलत आएगा आंसर। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन पॉजिटिव होता है, ये हो नहीं सकता कि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग से नेगेटिव आ जाए। मतलब दिस इक्वेशन आपको एक्सट्रानियस रूट्स देगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2, बेटा ये सॉल्वेबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग से हमेशा पॉजिटिव आंसर बाहर निकल के आता है। अगर कोई इसको सॉल्व करते हैं ना कि स्क्वायर लेता है और बोलता है कि x इक्वल टू 1/4, सही है, और फिर इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। बेटा ये क्वेश्चन देखो अब कितना लंबा लग रहा है कि इसका डबल डेरिवेटिव लेके उसमें फिर x इज इक्वल टू 1/4 पुट करोगे, राइट? कितना लंबा लगता है, बट द एक्चुअल पॉइंट इसके ये तो पहले डेरिवेटिव से ही पता चलता है कि दिस इज नॉट सॉल्वेबल। अब समझ में आ गया? प्लीज अगर क्लियर हो तो मुझे चैट में बता दो कि यस क्लियर है। जब आप लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव पुट कर लिया, उससे जो आपके पास इक्वेशन ही आई है वो इक्वेशन ही नॉन सॉल्वेबल है। तो मतलब देयर इज नो सच पॉइंट कि जिसपे ये रिलेटिव मिनिमम आपके पास आ जाए। अब बच्चों ने क्या किया होगा, चले गए होंगे डबल डेरिवेटिव निकाला होगा, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट किया होगा। या अगर उन्होंने सिर्फ ये x इज इक्वल टू 1/4 भी ऊपर पुट करना शुरू किया होगा, उसके बेसिस पे कोई मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिया होगा, सही है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज, ये वो वाला कंसेप्ट है जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में बताया था कि दिस विल डेफिनेटली कम, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 1/2 AB sin gamma। बेटा ये इस तरह होता है कि अगर एक ट्रायंगल हो, सही है, ए बी और सी, और उनके अंदर इंक्लूडेड एंगल हो, ए बी के अंदर इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा, बी के ऑपोजिट एंगल बीटा होगा, और ए के ऑपोजिट एंगल अल्फा होगा, तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ईदर 1/2 ए बी, अगर लेना हो ए बी साइड्स तो इंक्लूडेड एंगल गैमा आएगा,
मतलब ए और बी के जो वर्टेक्स पे बनता है वो वाला एंगल, सॉरी साइन गेमा, साइन गेमा मतलब ये वाला एंगल जो ए और बी के कॉर्नर पे बनता हो। या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा 1/2, अगर ए और सी लेना हो तो ए और सी के कॉर्नर में कौन सा बन रहा है, बी बीटा, तो इंक्लूडेड एंगल बीटा है, तो दैट वुड बी ए सी साइन बीटा। एंड अगर बी और सी के दरमियान लेना हो तो साइन अल्फा, 1/2 बी सी साइन अल्फा। सही, ये तीन एरियाज ऑफ ट्राइंगल है। द क्वेश्चन ओवर हियर टेल्स यू के इफ द डेल्टा इज इक्वल टू 8, the delta is equal to 8, a equal to 4, b equal to 2, a equal to 4, b equal to 2। तो बेटा ए भी गिवन है, ए और बी, तो बेटा साइन गेमा पूछा गया है या फिर गेमा पूछा गया है, तो द फॉर्मूला इज 1/2 ए बी साइन गेमा इक्वल टू 8। तो क्या कहते हैं, ए बी की वैल्यू पुट कर लो, तो 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 4 इंटू 2 इंटू साइन गेमा इक्वल टू 8। सही है, तो बेटा 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, सही है, 2 2 कैंसिल, 4 साइन गेमा इक्वल टू 8, 4 से डिवाइड कर लो तो साइन गेमा इक्वल टू 2 आ जाएगा, साइन गेमा इक्वल टू 2। हाँ बेटा ये सॉल्वेबल है, इज इट सॉल्वेबल? अदान आपने यही टेस्ट दिया था क्या? आप ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए थे जो ऊपर मैंने अभी करवाया? यू आर सेइंग डबल डेरिवेटिव नजर ही नहीं आया था। वेरी गुड। बेटा ये क्वेश्चन ये जो मैंने अभी करवाया है इसमें क्या मसला है, ये साइन गेमा इक्वल टू 2। शाबाश बेटा, साइन गेमा इक्वल टू 2 में क्या मसला है? बेटा क्या कोई, हाँ वेरी गुड। बेटा देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या मांगा था, साइन गेमा की वैल्यू निकालो, साइन गेमा। तो बेटा साइन गेमा की वैल्यू तो 2 है, बट इफ दे हैड आस्क्ड कि गेमा की वैल्यू निकालो, अब वी आर नॉट श्योर कि दे हैव आस्क्ड गेमा और साइन गेमा। बट अगर उन्होंने ये पूछा था कि गेमा निकालो, तो बेटा गेमा इज नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड एंगल है, अनडिफाइंड एंगल है। सही है बेटा, अनडिफाइंड एंगल इसलिए है क्योंकि अगर ये साइन गेमा 2 के बराबर है तो बेटा ऐसा कोई एंगल नहीं है जहाँ पे साइन आपको 1 से ज्यादा वैल्यू दे। तो जब साइन आपको 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता, तो दैट मीन्स कि क्या कहते हैं, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, जिस तरह वो ऊपर वाला इक्वेशन इनकरेक्ट था। सही है, तो साइन गेमा की वैल्यू अगर पूछी हो वो 2 है, बट इफ ओनली गेमा की वैल्यू पूछी दैट इज अनडिफाइंड, दैट वुड बी अनडिफाइंड। अच्छा, नेक्स्ट इज आई डॉट के क्रॉस जे। सही है, अब ये तो आई थिंक मैंने आप लोगों को उस क्लास में भी करवाया था। सो आई जे और के, बेटा क्लॉकवाइज में आते जाओ, नेक्स्ट वाला पुट करते जाओ। आई क्रॉस जे बराबर होगा प्लस के आई क्रॉस जे वुड बी इक्वल टू प्लस के। और अगर उल्टा जाओगे मतलब के क्रॉस जे, तो वो बराबर होगा माइनस आई के क्रॉस जे बराबर होगा माइनस आई के। सही है, आई जे के जे आई बट विद नेगेटिव साइन। सही है, ओके। तो के क्रॉस जे से क्या आता है, के क्रॉस जे इज माइनस आई, तो आई डॉट माइनस आई, तो माइनस बाहर कर लो, आई डॉट आई से 1 आता है तो -1, द आंसर वुड बी -1। सही है, अच्छा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम बोलते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल है, अल्फा बीटा गामा। तो ट्राइंगल का इंटरनल सम बराबर होता है 180 डिग्रीज के, ये आप सबको पता है। सही है, देयर इज अ ट्राइंगल, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स वुड बी 180 डिग्रीज। इसमें वो काफी वैरायटीज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है, साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, या फिर कॉज ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने आप लोग को लेक्चर्स में करवाए थे बाय द वे, एंड सो ऑन। सही है, या दे कैन आस्क साइन ऑफ बी प्लस सी, या दे कुड आस्क कॉज ऑफ बी प्लस सी। मैं दोनों वेराइटीज करवा देता हूँ, तो इन केस अगर रिपीट हो भी गया तो बेहतर रहेगा। उन्होंने जो इस क्वेश्चन में पूछा है दैट इज कोसिकेंट ऑफ अल्फा, कोसिकेंट ऑफ अल्फा। सही है, कोसिकेंट ऑफ अल्फा, ओके। अच्छा बेटा, तो द पॉइंट इसके क्वेश्चन मुझे खैर वैलिड लगता तो नहीं है, बट चलो अज्यूम कर लेते हैं कि वैलिड ही होगा। एनीवेज, देखो बेटा, अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सही है, सॉरी ये तो मैंने अल्फा बीटा गेमा लिया, इनको मैं कर लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। बेटा
दैट इज a प्लस b प्लस c। बेटा मुझे क्या चाहिए, b प्लस सी डिवाइड बाई टू। b प्लस सी आ जाएगा 180 माइनस a, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 90 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2 निकालना है मुझे, तो मतलब कि साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2 मुझे निकालना है। तो 90 वाला सीन चल रहा है, क्वाड्रेंट चेक करो, 90 माइनस a बाई 2 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पहले साइन, सॉरी एक पॉजिटिव साइन लगाओ। 90 वाला सीन चल रहा है, साइन चेंज होगा अपने को रेशो कॉज में, और ये एक्यूट एंगल लगाओगे। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अगर cos ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई टू इसी मेथड से निकालोगे ना, तो उसका आंसर साइन ऑफ a बाई टू आएगा, उसका आंसर साइन ऑफ a बाई टू आएगा। अच्छा, दूसरा इसमें होता है कि अगर b प्लस सी या a प्लस बी या a प्लस सी इस तरह की वैल्यूज निकालना है, तो पहले तो वो इक्वेशन यहाँ से निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल b प्लस सी निकालना है, चलो मैं a प्लस सी कर लेता हूँ, साइन ऑफ a प्लस सी। तो बेटा a प्लस सी यहाँ से निकालना हो तो वो हो जाएगा 180 माइनस बी, तो मतलब कि मुझे निकालना होगा साइन ऑफ 180 माइनस बी। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था ना, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इज इक्वल टू साइन थीटा। एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इट इज सप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट, साइन ऑफ 180 माइनस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट सेम एंगल, साइन बी। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये निंजा टेक्निक। बेटा 180 यहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सा इससे पीछे जाओ तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और बाकी एंगल वही लगाओ जो माइनस कर रहे हो, दैट्स इट। यही सॉल्व हो गया, सही। एंड कॉज में मैंने क्या बताया था, अगर cos ऑफ 180 माइनस मतलब cos ऑफ b प्लस सी अगर पूछ लेते हैं, तो दैट वुड बी cos ऑफ 180 माइनस a। तो दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले तो मैंने बताया था कि cos ऑफ 180 माइनस समथिंग इज माइनस cos ऑफ समथिंग, सही है। सप्लीमेंट्री में cos नेगेटिव हो जाता है, सप्लीमेंट्री में cos नेगेटिव हो जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, ये निंजा टेक्निक, यहाँ पे 180 आएगा, कुछ माइनस कर रहे हो तो पीछे जाओ, पीछे जा रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, और एंगल ये वाला लगा है। ओवर हियर द क्वेश्चन इज कि कोसिकेंट ऑफ अल्फा निकालो, तो कौन सा रॉकेट साइंस है बेटा, कोसिकेंट ऑफ मतलब इन्होंने अल्फा बोले, मैंने उसको ए बोला है, तो कोसिकेंट ऑफ ए निकालना है। तो बेटा कोसिकेंट ए किसके बराबर होगा, कोसिकेंट ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी, सही है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी, सही है। तो साइन ऑफ 180 माइनस समथिंग क्या आता है, साइन ऑफ समथिंग, सही है। या फिर वो भी कर सकते हो, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, सही है। तो माइनस कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, उससे भी कर सकते हो। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 माइनस समथिंग इज साइन ऑफ समथिंग, तो 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ b प्लस सी, विच वुड गिव यू कोसिकेंट ऑफ b प्लस सी। और चूंकि इन्होंने अल्फा बीटा गैमा लिए थे, तो उधर ऑप्शन होगा कोसिकेंट ऑफ बीटा प्लस गैमा, बस वही टिक करके आना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज n इक्वल टू 2 से लेकर क्या कहते हैं 30 तक। बेटा तो ये है, मतलब इसमें क्या ही करना है, बेटा 2 पुट करो प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू 30। 2 से लेकर 30 तक ऐड करना है, सही है। अब इसको सीधा 32 मत कर देना, इसमें कभी कभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग जाता है, विच पीपल माइट नॉट अंडरस्टैंड, सही है ना। इसमें बेटा वो कर लेना 30 इक्वल टू क्या कहते हैं समय निकालना है ना, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू 29 हो जाएगा, सही है। एन इक्वल टू 29 हो जाएगा, और क्या कहते हैं उसके बाद बस सिर्फ वैल्यूज वगैरह पुट कर लेना। 28 और 1 को शिफ्ट कर ले 29 आता है। उसके बाद n बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, तो n बाई टू टू 29 डिवाइड बाई टू इंटू ए वन की वैल्यू है 2 प्लस ए एन की वैल्यू है 30, तो 29 इंटू 32 डिवाइड बाई टू 16। ये कर लेना, ये सम हो गया, दिस इज योर सम। किसी माइकल किसी किंग भाई साहब ने इस पे ये वाला फॉर्मूला भी लगा के आया हो, सर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम तो n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है, बेटा ये गलत है। दिस इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन,
This is the sum of this series, not this series. ये 2 से शुरू हो रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है. That is the sum of first n natural numbers. The next question is quite similar to this. That is summation of 10 multiplied by 1 by 2 power n, where n is starting from 1 all the way up to infinity. So अगर किसी को याद हो, I told you कि constant को आप लोग summation से बाहर निकाल सकते हैं. मैंने आप लोगों को complex numbers में बताया था. कांस्टेंट को बाहर कर लो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1. बेटा ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाई 2 पावर n. बेटा 10 को बाहर कर लो, अंदर फॉर्मूला लगा लो 2 पावर 1 प्लस 1 बाई 2 पावर 2 प्लस 1 बाई 2 पावर 3 एंड सो ऑन. तो 10 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8 एंड सो ऑन. कॉमन रेशियो निकालो, आर मॉडुलस इक्वल टू कितना है, 1 बाई 2. R modulus is less than 1, and chunki there are infinite terms, the summation formula is a1 divided by 1 minus r. So a1 is 1 by 2 divided by 1 minus 1 divided by 2. But इससे आ जाएगा 1 by 2 divided by 1 by 2 which is 1, और ये 10 बाहर था तो 10 into 1, तो 10 summation इसका आंसर is 10. The answer would be 10. The next question is क्या कहते हैं, 1 minus iota की power 4. 1 minus iota की power 4. सही है यार, बहुत सिंपल है. तो बेटा इसको लिख लो 1 minus iota होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोबारा मल्टीप्लाई होके आपको 4 दे देंगे. सही है. सो बेटा ये क्या हो जाएगा, दैट वुड बी क्या कहते हैं 1 minus iota होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस iota स्क्वायर माइनस 2 iota इसकी होल की पावर स्क्वायर. 1 स्क्वायर iota स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो माइनस 2 iota की पावर स्क्वायर. बेटा इसमें माइनस 2 स्क्वायर बाहर कर लो, iota स्क्वायर अंदर रहने दो. माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, iota का स्क्वायर इज माइनस 1. द आंसर वुड बी माइनस 4. द आंसर वुड बी माइनस 4. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने आप लोगों को 1000 बार टेस्ट में दिया था कि n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1. n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इज n प्लस 1 कॉम्बिनेशन r. आपके बुक में भी लिखा होगा, यू पीपल कैन चेक इट ओवर देयर एज वेल. सही है. सेम गोज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू मेंशन, दैट इज क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ कॉट एक्स. डोमेन ऑफ कॉट एक्स. सही है. तो डोमेन ऑफ कॉट एक्स, बेटा कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स. तो डिनोमिनेटर को आप लोग कभी जीरो नहीं करने दे सकते. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एवरीथिंग वुड बी मेस्ड अप. सही है, एवरीथिंग वुड बी मेस्ड अप. तो बेटा साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. साइन एक्स कब जीरो होता है, ऑड पाई पे, एन पाई पे. सही है ना. पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई. तो एनी रियल नंबर except n pi is the domain. Any real number except n pi. 180 पे जीरो होता है पाई, 360 पे जीरो होता है 2 पाई, 540 पे जीरो होता है 3 पाई. आई थिंक हाँ 3 18 सर 54. तो इन सब पे जीरो होता है, तो साइन को तो जीरो करने नहीं दे सकते. सो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट n pi. बाकी द नेक्स्ट वन इज रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. रेंज ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. सही है. बेटा मैंने आपको बताया था ना कि रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालना हो, रेंज ऑफ इनवर्स निकालना हो तो डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल दो, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल दो, तो मतलब डोमेन ऑफ tan x निकाल दो. तो tan x का डोमेन क्या था, इसको याद है. प्रिंसिपल tan x का डोमेन क्या था, वाज इट माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, वाज इट 0 से लेकर पाई बाई 2, व्हाटएवर इट वाज, चेक इन द बुक. सही है ना. तो आई मीन लाइक एज आई सेड, बुक की लाइन ही आ जाती है. अभी तक हमने जितना पढ़ा, एक वो डेरिवेटिव वाले में ए के ए बी साइन गेमा वाले में थोड़ा सा, ए के ए प्लस बी वाले में थोड़ा सा आई वुड से प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे. बाकी आई एम प्रीटी श्योर मतलब दे आर ऑल डूएबल, नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक. सही है. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फाइंड द वेक्टर वेक्टर of magnitude 20. Find a vector of magnitude 20 in the direction of, in the direction of, in the direction of 2i plus 3j, sorry, 2i minus 3j
प्लस 2k। सही है। एक वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 20 हो और वो इसके डायरेक्शन में। बेटा किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर निकालना हो ना, ये उल्टे अल्फाज में या फिर दूसरी भाषा में ये बोल रहे हैं कि उसका यूनिट वेक्टर निकालो। बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका ये वेक्टर 2i-3j plus 2k divided by its magnitude. Magnitude is 2 square plus 2 square 4. Sorry, 4 plus 4 8, 8 plus 9 17. This this is the unit vector. ये यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है। ये यूनिट वेक्टर जो मैंने इसका निकाला ना, ये वही वेक्टर है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 निकालना था बेटा, इसी चीज के साथ 20 मल्टीप्लाई कर दो। सो 20 इंटू ये वाला चीज 2i-3j plus 2k divided by square root of 17. Please confirm करो if this is clear. Is this clear to everyone? Vector of any magnitude in the direction of another vector simply means उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, उसका डायरेक्शन आ जाएगा, उसके साथ ये करंट मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। बेटा जो मैं आपको बताता हूँ ना कि जाओ जाके वो पढ़ लिया करो ना, क्या कहते हैं, व्हाट एम आई सेइंग, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि ये बुक से देख लिया करो, तो प्लीज वो देख लिया करो। सही है। ओके अच्छा, द नेक्स्ट इज बेटा, ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बेसिक वाली चीजें पूछी है। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, ये चीजें तो रिपीट ही हुई है। ये एक उन्होंने पूछा है कि रेंज ऑफ sin x, रेंज ऑफ साइन, ये तो हमने आप लोगों के टेस्ट में भी डाला हुआ था। बेटा बुक की लाइन है, मतलब काफी आसान है। x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। साइन x 1 से छोटा नहीं देता, -1 से बड़ा नहीं देता, सॉरी 1 से बड़ा नहीं देता और -1 से छोटा नहीं देता। सही है, -1 से छोटा नहीं देता। ओके। रेंज ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ x, तो डोमेन ऑफ कॉज x निकालो, बट प्रिंसिपल कॉज x 0 से लेकर पाई तक। बाकी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, ये एक काफी खूबसूरत क्वेश्चन था। 2 cot 53 डिवाइडेड बाई tan 37। सही है, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो अब इतना डरने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। बेटा 53 प्लस 37 से क्या आता है? 53 प्लस 37 730 538 90 आता है। बेटा चूंकि ये 90 बन रहा है, इट मींस कि दीज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो cot ऑफ वन एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू tan ऑफ द अदर एंगल। ये दोनों सेम चीजें कैंसिल कर लो। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि sin 30 बराबर है cos 60 के। क्यों? क्योंकि दोनों में जो दोनों एंगल को सम करो 90 बनता है। तो if the sum of both angle is 90, it means कि वो sin of one angle is equal to cos of the other। तो बेटा इस आंसर सीधा 2 आता है। आंसर इज डायरेक्ट अवे 2। सही है। ओके। sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x, ये किसके बराबर है? इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि कोई वैल्यू इसमें पुट कर लो, उस तरीके से भी कर सकते हो। वैल्यू पुट करने का क्या कहते हैं, दिल नहीं करता तो बेटा याद कर लो, दिस इज 90 डिग्री पाई बाई 2। सही है, हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होता है 90 डिग्री। ओके। नेक्स्ट देयर इज जस्ट मेंशन कि सर्कुलर परमुटेशन। तो बेटा सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला क्या था? n-1 का फैक्टोरियल, दैट्स इट। और क्या कहते हैं, सर्कुलर का n-1 फैक्टोरियल था। बीड्स ऑन अ नेकलेस, गार्लैंड्स, रिंग्स ऑन अ सर्कल का था n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। सही है। अच्छा ओके सो अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। So the question is के rate of change of radiuses, radiuses एक तो इतना गंदा लिखा गया है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही। is 4 centimeter per second and radius is 2। radius is
2. Find rate of change of volume. Find rate change of volume. अच्छा, they only said कि rate of change of radius is 4. उन्होंने ये नहीं बोला कि rate of increase is 4 या rate of decrease is 4. तो बेटा हम यहाँ पे प्लस माइनस में से जो गिवन है बस वही वैल्यू लगा के बैठते हैं. तो v is equal to 4 by 3 pi r cube. तो dv divided by dt कर लो. 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या कहते हैं, that would be 4 pi r square. ठीक है, डॉट dr divided by dt चेन रूल भी अप्लाई करना. तो बेटा dr divided by dt rate of change of radius with respect to time is given to be 4. The radius is 2. बस वैल्यू पुट कर लो आ गया ना. तो 4 into pi into 2 का स्क्वायर is 4 into dr by dt is also 4. 4 cube is 64 to 64. Rate of change of volume with respect to the time is 64 pi. सही है. Okay. Next is you are asked the modulus of 2 plus iota divided by iota minus 2. सही है, iota minus 2. तो क्या कर रहे हैं बेटा, मॉडुलस दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दो. मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा निकाल दो डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा निकाल दो. सॉरी, आयोटा माइनस 2. आयोटा माइनस 2 बेटा दोनों का सेम ही आएगा ना. ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. दोनों कट हो गए, 1 दे देंगे. दोनों कट होके 1 दे देंगे. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज f of x equal to x square, sorry 2x square plus 6 and g of x equal to x minus 1. And you are asked about the composition of the function, that is f of g. f of g से composition of function मतलब f of g of x. ये चल गया बेटा. f of x लिख लो, that is 2x square plus 6. बेटा जहां पे x नजर आ रहा है ना वहां पे पूरा g of x घुसेड़ दो. बेटा f of g of x किसके बराबर हो जाएगा? x की जगह g of x घुसेड़ दो. g of x का होल स्क्वायर प्लस 6. बेटा g of x की वैल्यू पुट कर. that would be 2 into x minus 1 का whole square plus 6. So 2 into x square plus 1 minus 2x plus 6. But I'm pretty sure you people can simplify. It wouldn't be that much of a problem. Okay. The next one is क्या कहते हैं, let me just find out. Rate of change of circumference of is one rate of change of radius is. अच्छा बेटा ये c equal to 2 pi r होता है. सही है, circumference is 2 pi r. आप लोगों को बोला कि अगर rate of change of radius given हो, rate of change of radius, this is given, ये कितना given है, that is 2. तो find rate of change of circumference. तो बेटा rate of change of circumference निकालो ना. dc divided by dt equal to 2 pi constant है, बाहर कर लो और r को डिफरेंशिएट करो तो dr divided by dt आ जाएगा. dr divided by dt की वैल्यू 2 गिवन है, तो 2 pi into 2 बेटा ये आ जाएगा 4 pi. This would come out to be 4 pi. एक इनवर्स के हवाले से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा. देखो ये जो नेक्स्ट वाले ना आपको तंग इस तरह करते हैं. If I give you this question, for example, sine inverse of pi, what is the answer? आप चैट में मुझे बता सकते हो? Sine of sine inverse of pi क्या आंसर है? मतलब एक जो फाड़ो बंदा होगा वो सिर्फ बोलेगा कि सर दोनों को कैंसिल कर दो, पाई आंसर है. बेटा जब साइन फंक्शन बाहर होता है ना, जब नॉर्मल प्रिंसिपल फंक्शन बाहर होता है, सही है, प्रिंसिपल फंक्शन, देन आप लोग सीधा उड़ा दे सकते हो. बट उन्होंने टेस्ट में क्या दिया? उन्होंने टेस्ट में ये दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ पाई. उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया था टेस्ट में. अब यहाँ पे लिख के ले लो बेटा, एक ऑप्शन होगा पाई का और पूरे आवाम ने इस पर टिक करके आएगा. बेटा ये गलत है, आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते. अगर किसी ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स देखे ना, वहां पे मेंशन था कि वो तब कर सकते हो अगर अंदर प्रिंसिपल डोमेन.
बेटा पाई इज नॉट द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन। साइन का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। -π/2 से लेकर π/2 तक, अंदर तो पाई पड़ा है, पाई इज नॉट इन द प्रिंसिपल डोमेन। तो आप इन दोनों को कैंसिल करके पाई नहीं ला सकते। आप इन दोनों को कैंसिल करके पाई नहीं ला सकते। सही है बेटा, खुद सोचो पाई किसके बराबर होता है? 3.14। आप ये बोल रहे हो कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज 3.14। बेटा साइन कब आपको 3.14 देता है? ये चलो उस कंसेप्ट से करना भी करो, उस कंसेप्ट से करना भी करो। इन शॉर्ट अंदर प्रिंसिपल डोमेन नहीं है, तो हाउ वुड यू डू इट? बेटा साइन पाई निकालो ना, खुदा के बंदो, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अंदर ही आंसर भी बता। साइन ऑफ पाई निकालो, कितना बनता है? साइन पाई किसके बराबर होता है? 0 डिग्रीज के। साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन पाई सॉरी 0 के बराबर होता है, तो 0। साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 कब देता है? 0 डिग्री पे। बेटा इसको करने का एक और तरीका भी है, जो मैंने बोला कि प्रिंसिपल डोमेन में तो ये नहीं है, तो प्रिंसिपल डोमेन में ले आओ इसको। बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई लिखे, इसको लिख लो एज साइन ऑफ π-0। कोई गुना का काम तो नहीं है, मैंने पाई को लिख लिया एज π-0। यहाँ पे लगा लो सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट, साइन ऑफ पाई माइनस एनीथिंग इज साइन ऑफ एनीथिंग। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 0। अब चूंकि 0 इज इन द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन, अब इन दोनों को उड़ा दो, आंसर वुड बी 0। बट द आंसर इज नॉट पाई, द आंसर इज नॉट पाई। सही है, द आंसर इज नॉट पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है दैट इज क्या है क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स व्हेन कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स। कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स, तो 3 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3 हेड्स। इट इज अ लेंथी क्वेश्चन। बेटा एक तो 4 टाइम्स जब टॉस किया है कॉइन को, तो बेटा 4 की पावर 2, मतलब के आउटकम की पावर नंबर, सॉरी आउटकम की पावर नंबर 3 हेड्स। आउटकम की पावर नंबर, तो 2 आउटकम होते हैं कॉइन के, और कितनी बार टॉस किया? 4 बार, तो 16। अगर 4 की पावर 2 भी करते सेम ही आता है, बट खैर वो फॉर्मूला गलत था। बेटा इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि इसको लिखना किस तरह है। बेटा एक कॉइन का वो होता है टेल, हेड। ये एक कॉइन का होता है। 2 कॉइन का करने हैं तो क्या करने? टेल को ले लो, इसके साथ एक टेल जोड़ दो, और फिर इसके साथ एक हेड जोड़ दो। फिर इस हेड को ले लो, इसके साथ एक टेल जोड़ दो, और इसके साथ एक हेड जोड़ दो। ये देखो 2 कॉइन्स का आउटकम आया। 3 कॉइन्स का आउटकम निकालने हैं। बेटा इसको ले लो, टेल और टेल, इसके साथ एक टेल जोड़ दो, और इसी को ले लो, इसके साथ एक हेड जोड़ दो। फिर इसको ले लो, टेल हेड, इसके साथ एक टेल जोड़ दो, और इसके साथ एक हेड जोड़ दो। सिमिलरली इन 2 को ले लो, इनके साथ ये कर लो, उससे 3 टाइम्स टॉस का आ जाएगा। फिर उनको ले लो, सबके साथ एक बार टेल टेल, एक बार हेड हेड जोड़ दो, 4 टाइम्स का आ जाएगा। उसमें से एटलीस्ट 3 हेड्स काउंट कर देना। 3 या 3 से ज्यादा, कितने आउटकम्स हो गए? 3 या 3 से ज्यादा। 4 बार अगर टॉस करोगे तो यार एक आउटकम तो होगी जिसमें चारों हेड्स आ जाएंगे, और एक आउटकम होगी जिसमें क्या कहते हैं 3 टेल्स, 3 हेड्स होंगे। मतलब इस तरह होगा, टेल हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, मतलब 3 हेड, एक टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड। यस ये भी हो सकता है। और इस तरह और काउंट कर लो, आई थिंक 4-5 कुछ आउटकम्स बनेंगे। उसको डिवाइड बाई 16 कर लेना, वही आंसर है। सही है। और ये एक है दूसरी क्लास कम, दूसरी क्लास करनी है 20 मिनट में, मुझे चैट में जरा जल्दी बता दो। शुड आई सेंड यू अनदर लिंक? दूसरी क्लास करनी, प्लीज मुझे चैट में बता दो इफ यू वांट टू डू अनदर।